Hello. Good evening, everyone. So, good evening. Shall we start? Fine. Yesterday we had seen lac operon. Basic concept of the lac operon, which we have seen yesterday, was that was we had a structural genes and we are having regulated molecules. The lac operon, we have what we have seen, that was one a specific type of operon, that was if you'll see go for these four different types of system what we are having. So lac operon belonging to the negative inducible operon, where we used to have a active repressor molecules. First thing you understand, lac operon is a cis operon. Cis kind of cis acting operon means the repressor molecules or the regulator molecules is present on the same gene, same place, where structural genes are there, where other regulator molecules are there. So the repressor gene is also on the same place. Like if you see in this case, so on this same gene we are having repressor molecules also. So that is called as cis acting gene on the same site, same sequence, same DNA. When we are having two different locations, means like repressor molecules or the regulator molecules present on different genes at different locations, then we are going to call transacting. So lac operon, which we have talked yesterday, that is cis acting gene. Yes, so their repressor is on the same gene. Today we are going to talk about trip operon. So trip operon is a transacting gene, where repressor molecules is not present on the same gene, rather it is present on the different chromosomes, different places, and there it will be produced protein, repressor proteins, and then it will come here. So that is transacting gene. So this is one major difference in these two system. Other than this one, what we have seen yesterday, in case of lac operon, normally this repressor is a active repressor. So whenever we need to transcribe lac operon genes, we have to inactivate this one. So that's why it was inducible gene. We need to induce it. How we can induce it? By inactivating these repressor molecules. For that inactivating repressor, we used to use a inducer molecules, and that was my allolactose in our case. So allolactose normally inactivate this repressor, and ultimately transcription takes place. So this already we have done it for lac operon. Today what we are going to do it, that is negative repressible. So trip operon is a negative repressible, means in this case also we are going to have repressor molecules, but today in the trip operon the repressor is naturally it is inactive. We have to make them active. So when you are having, you don't have anything, either activator or any co-repressors, that time repressor will be inactive. So when repressor will be inactive, transcription will not take place. Transcription will take place because repressor is not able to bind there. Once we are going to make this repressor active, then repressor will bind there and transcription will be stopped. So this we will see today in case of trip operon. So remember, these are the two most questionable, or most of the questions comes on this lac and trip operon. So if, and they two are two different type of operon. Other two operon we are having, that is positive inducible and positive repressible, that already we have discussed it. For this one we are not going to see. If you are having any query, I will solve it. Otherwise normally we are not going to see any example on these two. So tryptophan, trip operon means I am talking about the tryptophan, and probably you might be knowing that tryptophan is an amino acid out of those 20 amino acids which normally we are going to use for protein synthesis. So in that case, tryptophan is an aromatic amino acid, and you can call it normally whenever cell need to synthesize, because we are talking about the E. coli. So whenever a bacterial cells or any cells need to synthesize any proteins, they require tryptophan, because tryptophan is an amino acid which is required there. Now because you have already seen translation process, so for translation process the first step was the loading of tRNA. So we used to have tRNA which is specific for tryptophan. On this one
we are going to load tryptophan amino acid. So this is the activation or loading of tRNA that already we have discussed during the protein synthesis. Hope everyone remembers it, right? Everyone remember this one? Fine. So if a cell is having sufficient quantity of tryptophan, normally this operon is for the synthetic processes. So we are going to synthesize tryptophan in the cells. Bacteria are going to produce tryptophan. So this is a sequential event, sequential biochemical process by which they produce tryptophan in bacterial cells. So whenever bacteria is having sufficient amount of tryptophan, they don't need to synthesize more tryptophan. See, just one. This is a bacterial cell, and this is a trypoperon. This is trypoperon, which gives you 5 different types of enzymes. These enzymes are normally used for synthesis of tryptophan. So we are going to use some kind of reactant molecules, and ultimately these 5 enzymes activate and give you tryptophan. This is the process. So for this tryptophan synthesis, we require this tryptophan operon need to be activated. Clear? यहाँ तक ठीक है? This is clear? Yes, sir. अब if bacterial cell already have sufficient amount of tryptophan, बैक्टीरिया के पास बहुत पहले से बहुत tryptophan available है. In that case, bacteria does not require any tryptophan need to be synthesized. कोई tryptophan बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास tryptophan है पहले से. तो उस केस में ये ओपेरॉन काम नहीं करेगा. दिस ओपेरॉन विल बी इनएक्टिवेटेड, स्विच्ड ऑफ. So trypoperon will not work when bacterial cell is tryptophan rich or tryptophan is present there in the sufficient amount. Whenever bacteria will be tryptophan deficient, bacteria के पास tryptophan है नहीं, in that case they need to synthesize tryptophan, and for this synthesis they require all these 5 enzymes. So tryptophan operon or trypoperon will be need to be activated. So दो चीज़ें कल हम बात कर रहे थे, दैट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट वाज फॉर डिग्रेडेशन कैटाबॉलिक ओपेरॉन. दिस इज सिंथेटिक एनाबॉलिक ओपेरॉन. वहाँ हम बात कर रहे थे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए. यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिप्टोफान को सिंथेसाइज करने के लिए. तो जब सेल के पास ट्रिप्टोफान होगा तो ओपेरॉन काम नहीं करेगा. दिस ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑफ. जब बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफान नहीं होगा तो बैक्टीरिया नीड टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफान. इन दैट केस दिस ट्रिप्टोफान will be produced by activating these enzymes expression. यहाँ तक clear है? Any question, any confusion, anyone is having? No. So trypoperon, normally this should be written in italics. जब हम जीन की बात कर रहे हैं ना, whenever we are talking about genes, normally it should be in italics. So trypoperon, it is responsible for the biosynthetic enzyme for the amino acid tryptophan. Trypoperon is going to be switched on when very less tryptophan level will be there or tryptophan is in the scarce. Bacterial cells are having a scarcity of tryptophan. That time operon will be switched on and tryptophan will be produced. When tryptophan is in sufficient amount, in enough quantity, that time this operon will not work, so it will be switched off. This process, switch on and switch off, is going to be regulated by a protein that is called as tryptophan repressor molecules. Yesterday also we had a repressor molecules. Today also we are having a repressor molecules because we are talking about a negative operon. Yesterday also it was negative operon. आज भी हम बात करें नेगेटिव ऑपरेशन को. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ए नेगेटिव रेगुलेशंस, दैट टाइम वी यूज टू हैव ए रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स. नाउ मैंने बोला कि दिस रिप्रेशर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन फ्रॉम सम अदर जीन. सो दिस ट्रिपोपेरॉन इज ए ट्रांस एक्टिंग जीन या ट्रांस एक्टिंग कंपोनेंट. इट इज so there are 2 types of regulation. One regulation is through repressor molecules and second regulation is through attenuation process. What is attenuations? हम डिटेल्स में देखते हैं आगे.
दिस इज ए मैकेनिज्म विच इज बेस्ड ऑन द कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जहां ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों को ज्वाइन करके एक साथ मिला के हम देखते हैं. सॉरी. सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस एटेन्यूएशन मैकेनिज्म. याद कीजिए कल भी हमने देखा था लैक ऑपरेरॉन वाज रेगुलेटेड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म. वन मैकेनिज्म इज थ्रू रिप्रेसर मोलिक्यूल्स, वेर रिप्रेसर के साथ हम एलो लैक्टोज को बाइंड करवा के करते थे, और दूसरा मैकेनिज्म जो था दैट वाज साइक्लिक एम्पियन कैप कॉम्प्लेक्स के द्वारा. आज भी दिस ट्रिप्टोफैन इज ऑल्सो गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. वन इज थ्रू रिप्रेसर एंड सेकेंड वन इज थ्रू एटेन्यूएशन. क्लियर? Yes, sir. Fine. So this is the this triptophan normally gives us 5 different enzymes. कौन कौन सा एंजाइम? एंजाइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5. So tryptophan operon gives us 5 different, or sorry, not for us, for bacteria की बात हम कर रहे हैं, तो in bacterial cells they are going to give 5 different enzymes. So these 5 enzymes are normally involved in the tryptophan synthetic process. So अगर आप देखेंगे tryptophan synthesis starts होता है कोरिस्मेट से, and through different biochemical processes ultimately it is going to give you tryptophan. So यहाँ से स्टार्ट करके हम tryptophan बनाते हैं. इस केस में हमें it is a multi step reaction, so we require total 5 enzymes. This first enzyme is पहला एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रानिलेट सिंथेज, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. ये दोनों कंपोनेंट 2 एंजाइम 2 अलग अलग जीन्स पे से बनते हैं और दोनों मिला के हमें एक कॉम्प्लेक्स देते हैं. सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. 2 कंपोनेंट, एक इसका 2 कंपोनेंट और इसका 2 कंपोनेंट, टोटल मिला के टेट्रामर इट इज कॉल्ड एज हेटेरो टेट्रामर. Similarly, the last enzyme is tryptophan synthase, that is also heterotetramer. So 2 alpha and 2 beta combine together and give you tryptophan synthase. और मुझे ये बायोकेमिकल प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड टू रिमेंबर इट, या आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. बट हम कहने का मतलब ये है कि सभी जीन्स, कल भी मैंने बात किया था कि वाई ऑल द लैक जेड वाई ए इज ऑन द सेम जीन्स या ऑन द सेम ओपेरॉन, बिकॉज तीनों की इन्वॉल्वमेंट एक ही मैकेनिज्म, एक ही काम के लिए हो रही है. यहाँ भी 5 एंजाइम चूंकि एक ही काम के लिए बन रहे हैं, एक ही प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, एक ही बायोकेमिकल पाथवे के लिए ज़रूरी है, इसीलिए 5 एंजाइम्स की जीन्स जो है वो एक ही जीन्स पे, एक ही ओपेरॉन पे हो रहा है, एक ही तरह रेगुलेट हो रहा है. सो दीज आर द 5 डिफरेंट एंजाइम्स वी रिक्वायर, बैक्टीरियल सेल्स रिक्वायर्ड इट. अब जो 2 ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 सिंपल मैंने बात करी, एक ट्रिप्टोफान सेल्स में है या नहीं है. सो कंडीशन नंबर 1, व्हेन ट्रिप्टोफान अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल यूजेज. तो जब ट्रिप्टोफान होगा सेल्स में तो बैक्टीरिया डज नॉट नीड टू सिंथेसाइज इट. सो इन दैट केस नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिप्टोफान टू सिंथेसाइज एंड दिस ट्रिप्टोफैन विल बी स्विच्ड ऑफ. Another important point is tryptophan is not available in the environment or in the media for bacterial uses. In that case, bacteria need to synthesize it and tryptophan should be switched on. ये 2 बेसिक प्रोसेस है जिसको मैनेज करने के लिए कि कब हमें स्विच ऑन करना है, कब हमें स्विच ऑफ करना है, इसके लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म है. वन इज रिप्रेसर मीडिएटेड एंड सेकेंड वन इज थ्रू एटेन्यूएशन प्रोसेस. Is it clear? Yes, sir. Okay. This is a tryptophan. अब जैसे हमने लैक ओपेरॉन के केस में देखा था, यहाँ भी वी आर हैविंग सम स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल. दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन विच नॉर्मली गिव्स अस ए प्रोटीन. जो 5 एंजाइम की मैंने बात करी थी, सो दे आर नेम्ड एज ए, बी, सी, डी, ई. ये 5 हमें 5 अलग अलग एंजाइम्स देते हैं जो आपने अभी बायोकेमिकल पाथवे में देखा था, और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू यूज्ड फॉर द ट्रिप्टोफान बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस.
इससे पहले इसके पास कुछ रेगुलेटर जीन्स होते हैं, रेगुलेटर रीजन्स होते हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सो ट्रिप्टोफान की रेगुलेटर कंपोनेंट स्लाइटली डिफरेंट हो रहे हैं जो लैक ओपेरॉन के थे, बट रेगुलेटर कंपोनेंट्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर रेगुलेटर प्रोसेसेस ओनली, रेगुलेशन पर्पसेस ओनली। सो इन दिस केस अगर आपने लैक ओपेरॉन देखा हो तो वहाँ हमारे पास सिर्फ था आई जीन, पी जीन, ओ जीन, जेड, वाई, ए जीन। सो दीज थ्री वेयर स्ट्रक्चरल जीन एंड दीज थ्री वेयर द रेगुलेटर जीन। इस केस में हमारे पास जो है एक है पी एंड ओ, दैट इज प्रोमोटर एंड ऑपरेटर जीन, जैसे उस केस में था। सेकेंड वन इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर कंपोनेंट जो एटेन्यूएशन के समय में हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रिप एल। सो दिस एल इज गोइंग टू फॉर्म ए लीडर सीक्वेंस, ठीक है, और यू कैन कॉल इट एटेन्यूएटर सीक्वेंस। आप लीडर सीक्वेंस याद कीजिए, बिकॉज एल है तो इट इज लीडर सीक्वेंस, दैट इज यू विल रिमेंबर इट इजिली। इसका लोकेशन कहाँ होता है? अगर आप इस जीन को देखेंगे तो दिस इज, मान लीजिए यहाँ हमारा ऑपरेटर जीन है, दिस इज प्रोमोटर जीन। सो बिटवीन ऑपरेटर जीन एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन, इसके बीच में यहाँ पे एक लीडर सीक्वेंस होता है। सो ट्रिप एल इज लोकेटेड एट दिस प्लेस। सो लीडर सीक्वेंस इज लोकेटेड in between the operator and the first structural gene, ठीक है, clear? Yes sir. Okay. Then we are having different structural genes, that is DE, that is gene for ethranilate synthase component component 1 and component 2. Then TRPC, which is for glycerophosphate synthase, and last one is B and A, that is gene for tryptophan synthase. तो अगर आप इस जीन को देखेंगे तो जैसे जैसे हमने एंजाइम यूज किया था, अगर आप बायोकेमिकल प्रोसेस को देख लेंगे तो ये दोनों एंजाइम जो हमें मिलते हैं वो D एंड E मिला बना के देते हैं, दिस इज C, एंड ये A एंड B देते हैं। तो यहाँ से शुरू कीजिए A, B, C, D, E। तो दीज आर द 5 डिफरेंट एंजाइम्स वी आर गेटिंग। ठीक है, अब इस लीडर सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एटेन्यूएशन प्रोसेस, तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रिप्रेसर प्रोटीन्स के बारे में फर्स्ट समझते हैं। सो दिस इज द लीडर सीक्वेंस विच रफली ऑफ 162 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग्स, बट ओवरऑल ये बनाता है हमारे लिए सिर्फ 14 एमिनो एसिड लंबा सीक्वेंस। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स A, B, C, D, E. दिस इज लीडर सीक्वेंस L, एंड हियर वी आर हैविंग प्रोमोटर एंड ऑपरेटर जीन। सो डिफरेंस क्या हुआ, जो हमने बात करी थी कल इन द केस ऑफ लैक ओपेरॉन, और आज के केस में ये लीडर सीक्वेंस। कल ये लीडर सीक्वेंस नहीं होता था हमारे उसके केस में, लैक ओपेरॉन के केस में, बट इन केस ऑफ ट्रिप्टोफान ओपेरॉन वी आर हैविंग ए लीडर सीक्वेंस ऑल्सो। ठीक है, अब in case of tryptophan operon, the first kind of regulation is mediated by the repressor molecules. So tryptophan के केस में जो हमारा जो रिप्रेसर मोलिक्यूल होता था, दैट इज ए ट्रांस एक्टिंग एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ए डिफरेंट जीन्स एट डिफरेंट लोकेशंस, एंड दैट इज होमोडाइमर, मीन्स 2 कंपोनेंट मिलके हमें बनाते हैं ये ट्रिप्टोफान रिप्रेसर मोलिक्यूल्स, that is roughly of 107 amino acid long. So we are going to have a repressor molecules from a trans acting gene. Then this repressor normally binds at the operator site similar to the lac operon, but ठीक है यहाँ तक, but this repressor is inactive. आप इसको I लिख लीजिए, this is inactive. So repressor here is in case of tryptophan is inactive. कल के केस में हमारा क्या था, जो सबसे पहला रिप्रेसर हमने बनाया था वो रिप्रेसर एक्टिव हुआ करता था जिसको हम इनएक्टिवेट करते थे। आज के केस में हमारा रिप्रेसर जो है वो शुरू से ही इनएक्टिव है।
ठीक है, तो इस रिप्रेसर को हमें एक्टिव करने के लिए वी रिक्वायर ए को रिप्रेसर मोलिक्यूल, को रिप्रेसर मोलिक्यूल. So in this case the co-repressor molecule is tryptophan itself, tryptophan. So यहाँ tryptophan जो है वो co-repressor का काम करता है. तो this repressor is inactive. तो होगा क्या, आप इसको ऐसे समझिए, दिस इज ए जीन, दिस इज A B C D E, this is operator gene, this is L gene, this is P gene. We are having a repressor molecules. Initially this repressor is inactive. अब दो कंडीशन हम सोच लेते हैं. पहला कंडीशन कि सेल में ट्रिप्टोफान हाई सफिशियंट अमाउंट में है. तो दिस रिप्रेसर, मैंने बोला कि ये दिस रिप्रेसर इज इनएक्टिव. तो जब इनएक्टिव होगा तो ये बाइंड नहीं करेगा ओ साइट पे. सही बोल रहा हूं मैं? यस सर. So when this repressor is inactive, it is not able to bind to the O site. जब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा तो आपका जीन का एक्सप्रेशन होगा. अब कंडीशन मैं बता रहा हूं कि सेल्स के पास ट्रिप्टोफान सफिशियंट क्वांटिटी में है. सेल के पास ट्रिप्टोफान सफिशियंट अमाउंट में है, तो क्या होगा, दिस ट्रिप्टोफान गोइंग टू बाइंड विद दिस रिप्रेसर एंड मेक देम एक्टिव. जो आई था पहले, दे बिकम्स एक्टिव रिप्रेसर. And when you are going to have active repressor, it will go and bind to this O site. जब रिप्रेसर बाइंड कर लेगा यहाँ पे, तो RNA पॉलीमरेज विल नॉट बाइंड और विल नॉट मूव. RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा. अब सही बात है, जब सेल के पास सफिशियंट क्वांटिटी में ट्रिप्टोफान है ही, तो हमें इसको बनाने, एंजाइम को बनाने की जरूरत ही नहीं है. तो सही हो रहा है कि ट्रिप्टोफान सेल में है, तो रिप्रेसर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड एंड इट इनएक्टिवेट्स द जीन एक्सप्रेशन. दूसरा कंडीशन है जब सेल के पास ट्रिप्टोफान हाई नहीं, नो ट्रिप्टोफान इज देयर. सो इन दैट केस रिप्रेसर जो इनएक्टिव था, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एक्टिव, इट ये इनएक्टिव ही रहेगा. एंड इन दैट केस जीन विल बी एक्सप्रेस्ड एंड ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज्ड. दिस इज सिंपल बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेसर मीडिएटेड रेगुलेशन. So when we are going initially, when you don't have tryptophan, that time repressor will be inactive. Inactive repressor does not bind to the gene, so that RNA polymerase will bind and gene will be expressed, gene are switched on. जब हमारे पास ट्रिप्टोफान होगा सेल्स में, तो ट्रिप्टोफान गोइंग टू बाइंड विद दिस रिप्रेसर, मेक देम एक्टिव, and now this active repressor binds here and RNA polymerase will not bind, and in that case expression will be switched off. These are the two basic simple mechanism of repressor mediated regulation of tryptophan operon. तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज वी आर हैविंग ए रिप्रेसर, सो इट इज ए नेगेटिव, एंड बिकॉज हम इसको रिप्रेस्ड कर रहे हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू एक्टिवेट इट, व्हेन फंक्शनल आपका जीन्स मीन्स जब आपका सिस्टम सारा काम कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू इनएक्टिवेट. So it is a negative repressible operon. Means in the presence of metabolite, the genes are going to be inactivated, going to be repressed. So that is called as negative repressible operon. Is it clear for everyone? Minimum say yes or no. बाकी जवाब तो नहीं देते हैं आप, इतना तो बता दीजिए समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा. यस सर, क्लियर. This is same thing. When we are having only tryptophan repressor, this is from the gene, tryptophan comes and bind there, it will be activated, and once this will be activated, it will bind to the operator regions and stop the transcription of this gene. ठीक है. So when this is the same thing, when you don't have tryptophan or low tryptophan, that time tryptophan this repressor we are going to have, repressor will be inactivated. Normally it is inactive, but because tryptophan है ही नहीं, so this inactive repressor cannot be converted to active. So in that case it will not able to bind there, and when it is not able to bind there, RNA polymerase will bind and gene will be expressed. So this is in the condition of
low tryptophan cases. Second one is when we are having high tryptophan. In that case, this high tryptophan, जब आपके पास sufficient amount of tryptophan है, तो it will bind to the repressor. So initially this repressor was inactive because of this tryptophan which is working as a co-repressor. So co-repressor activate the repressor and you will have a active tryptophan repressor. This active repressor binds to this O site and does not allow RNA polymerase to bind here. When RNA polymerase will not bind there, no translation or no protein synthesis will be there, so no gene will be produced. Because cell is having sufficient quantity, so cell does not want to expend, so does not want to use their resources on expression of those genes which is doing the same process which already cell is having. So this is two condition. The most important thing in tryptophan operonase, वो अभी तक हमने पढ़ा, दैट वाज द बेसिक थिंग जो आप नॉर्मली जानते हैं. एटीन्यूएशन विच इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि अगर आप एटीन्यूएशन की बात कर रहे हैं तो ट्रिप ओपरॉन में मैंने एक सीक्वेंस की बात करी थी, लीडर सीक्वेंस की बात की थी. सो दिस लीडर सीक्वेंस दैट इज ए सेक्शन विच present between the two genes, that is the operator gene and the first structural gene, that is E, जो आप यहाँ देख रहे हैं. So this is between O and between E. This leader sequence codes for a small peptide. Roughly इसमें 162 के लगभग एमिनो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बट ये एक प्रोटीन बना के देता है, दैट इज, मैं इस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ. सो दैट इज ए लीडर पेप्टाइड. ये दो चीज़ें बनाता है, एक लीडर पेप्टाइड जिसकी लेंथ होती है रफली 14 एमिनो एसिड्स का, एंड दूसरा चीज़ ये बनाता है कुछ एटीन्यूएटर सीक्वेंसेस जैसे 2, 3, 4 जो आप देख रहे हैं. सो दिस मेक्स ए स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ एटीन्यूएटर कंपोनेंट्स. दो लीडर सीक्वेंस हमें 4 स्पेसिफिक रीजन्स प्रोड्यूस करके देता है. पहला को हम बोलते हैं लीडर सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ 14 एमिनो एसिड लॉन्ग, एंड उसके बाद कुछ रीजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटर रीजन्स. सो द एटीन्यूएटर डज नॉट, अल्टीमेटली ये आपको प्रोटीन बना के देता नहीं है. ये सारे सीक्वेंस हमारे नॉन कोडिंग रीजन्स है. अल्टीमेटली इट विल नॉट गिव मी प्रोटीन्स, बट दीज आर जस्ट ए रेगुलेटर मोलिक्यूल्स. अब होगा क्या, जब आप इसको बना लेते हैं, जब आप आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड किया, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज मूव्स दिस साइड, तो इस न्यूक्लियोटाइड आपके इस जीन को एक्सप्रेस करने से पहले आरएनए पॉलीमरेज हैज टू एक्सप्रेस दिस लीडर सीक्वेंस. तो ये बनाएगा. अब ये मैसेंजर आरएनए है, दिस मैसेंजर आरएनए में ये जो रीजन है, दीज आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स. अब हाउ इट इज गोइंग टू बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, नंबर 3 रीजन जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 2 ऑल्सो एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू 4 ऑल्सो. आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि one region, this region, एक सेकेंड, so this type of regions are there. So region number 1 can complementary to 2. एक अगर पॉसिबल है, अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एन ऑप्शन, सो रीजन नंबर 1 दिस कैन मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन, सो इट कैन मेक ए हेयर पिन लूप लाइक ए स्ट्रक्चर. रीजन नंबर 2 कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री विथ 3. रीजन नंबर 3 कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू 4. ठीक है यहाँ तक? इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस रीजन, जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँचेगा उससे पहले ये रीजन बन जाएंगे, और ये रीजन अगर बनेगा तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर 1 रीजन कैन कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन, सो इट कैन मेक ए हेयर पिन लूप लाइक ए स्ट्रक्चर दिस वन. 2, 3 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, तो यहाँ भी हेयर पिन लूप बन सकता है. 3, 4 के साथ हेयर पिन लूप बना सकता है. सो इस तरह के लूप बन सकते हैं. ठीक है, अब इसमें कौन सा लूप हमें बनाना है, किस तरह का हेयर पिन लूप हम बनाते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. उसी के बेसिस पे ये रेगुलेट होने जा रहा है.
So this sequence is having, this leader sequence is having 4 different domains: domain number 1, domain number 2, domain number 3, domain number 4. Domain number 3 can base pair with 2 और 4, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. 3 की स्पेसिफिसिटी 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है. ठीक है. अगर डोमेन 3 4 के साथ पेयर करता है, इफ डोमेन 3 पेयर्स विथ 4 मीन्स 3 and 4 इज, this is domain number 1, this is domain number 2, and this is domain number 3 and domain number 4. If domain number 3 and 4 going to make a self complementary region, hairpin loop, so in that case a loop is going to form on the messenger RNA and transcription is going to be stopped. So this is called as attenuation या terminator loop. When loop is going to form by pair complementary region of 3 and 4, it is called as termination loop, termination hairpin loop. So 3 4 pairs and it is called as terminator loop या termination. When 3 pairs with 2, जो मैंने यहाँ बात की थी कि 3 2 4 के साथ भी बाइंड कर सकता है and 2 के साथ भी बाइंड कर सकता है. When 3 pairs with 4, it is termination. When 3 pairs with 2, it is called as anti termination. ये सब याद कीजिए, जहाँ समझने में दिक्कत हो वहाँ पूछिए, वहाँ मैं स्टॉप हो जाऊँगा, मैं रिपीट कर दूँगा. मैं फिर से बता रहा हूँ. In case of tryptophan operon, we are going to have a specific region on their genes, on their operon, that is called as leader sequence. That leader sequence lies between the operator regions and the first structural gene, that is E. ये रफली 160 बेस पेयर का होता है और लीडर, एक्चुअल लीडर सीक्वेंस जो होता है, दैट इज लीडर पेप्टाइड, दैट इज ऑफ 14 एमिनो एसिड लॉन्ग. टोटल 4 डोमेन्स ये बना के हमें देते हैं, डोमेन नंबर 1 2 3 and 4. डोमेन नंबर 1 कैन फॉर्म ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन विथ 2, 2 कैन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन विथ 3, 3 कैन पेयर विथ 4. इफ कंडीशन एग्जिस्ट, ऐसा कंडीशन बनता है कि 2 पेयर हो रहा है 3 के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज एंटी टर्मिनेशन, मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा, तब आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा. सो इन दैट केस ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस होना है. व्हेन दिस इज गोइंग टू पेयर विद दिस वन, व्हेन 3 इज गोइंग टू पेयर विद 4, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. सो इन दैट केस प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस विल बी स्टॉप्ड. हम स्टॉप करने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, किस के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री लूप फॉर्मेशन इन द मैसेंजर आरएनए. मैंने शुरू में बात किया था, एटेन्यूएटर इज ए सीक्वेंस वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन. तो हम वी आर गोइंग टू स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस मीडिएटेड बाय द लूप फॉर्मेशन इन द आरएनए. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आई एम कमिंग ऑन द प्रोसेस. Okay. So this is the sequence. इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि 1 2 के साथ पेयर हो जाए, 3 4 के साथ पेयर हो जाए. अगर अब ये सिचुएशन देखिए, अगर मेरा सीक्वेंस नंबर 1 इज गोइंग टू पेयर विथ 2, सो जब एक पेयर बना लेगा 2 के साथ, तो 2 कभी भी पेयर नहीं बना पाएगा 3 के साथ, बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड देयर. ठीक है. इफ आपके पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, ये 3 इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि 3 किसके साथ पेयर बनाता है, किसके साथ लूप फॉर्म करता है, कि टर्मिनेशन स्टॉप होगा या टर्मिनेशन को चलना है. इफ दिस 2 विल फॉर्म ए पेयर लाइक दिस वन जो आप यहां देख रहे हैं, इन दैट केस 3 have only one option, that it can form a pair, it can form a loop with 4. 3 never can form a pair with 2. तो जब 1 और 2 बन जाएगा पेयर या लूप बना लेगा, तो इन दैट केस ओनली ऑप्शन इज 3 4 पेयरिंग. सो टर्मिनेशन विल बी देयर. किसी भी कारण से अगर 1 2 ये लूप नहीं बनता है, इन दैट केस देयर इज ए चांस दैट 3 and 2 फॉर्म ए लूप.
ठीक है, आपके पास 4 रीजन्स हैं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। अगर हमने रीजन 1 इज गोइंग टू यूज्ड बाय रीजन 2 फॉर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री और हेयर पिन लूप फॉर्मेशन, तो नंबर 2 नेवर गोइंग टू फॉर्म ए लूप विथ 3, बिकॉज इसकी इन्वॉल्वमेंट इस लूप के साथ हो गई है, तो ये लूप कभी भी इसके साथ बाइंड नहीं करेगा 3 नंबर के साथ। सो इन दैट केस ओनली 3 एंड फॉर्म कैन फॉर्म ए लूप एंड दैट टाइम टर्मिनेशन विल बी देयर। जब आपका ये लूप नहीं बनेगा, लूप 1 और 2 नहीं बना रहा है, लूप सेकेंड नंबर ऑफ डोमेन इज फ्री, दैट टाइम दिस कैन पेयर विथ 3। 2 पॉइंट याद कीजिएगा, व्हेन लूप नंबर 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग ए हेयर पिन लूप, तो इट विल पेयर ए लूप विथ 2, दैट टाइम 3, 4 इज गोइंग टू फॉर्म ए लूप। जब ये बनेगा तो इस थर्ड के पास एक ही ऑप्शन है, जब तक ये लूप नहीं बन रहा है तो 3 इज हैविंग 2 ऑप्शन, इट कैन पेयर विथ 2 ऑल्सो, इट कैन पेयर विथ 4 ऑल्सो। बट अगर ये सेकेंड नंबर का डोमेन यूज्ड हो गया बाय 1 इसके साथ लूप बनाने में, तो 3 डज नॉट हैव एनी 2 चॉइसेस, इट इज हैविंग ओनली 1 चॉइस दैट इट कैन फॉर्म ए लूप विथ 4 नंबर ऑफ डोमेन्स ओनली। ठीक है, नहीं समझ में आया? Yes, sir. अगर आपने इसको नहीं बनाया, अगर मैंने किसी कारण से 1 नंबर लूप का यूज नहीं किया, तो ये जब यूज नहीं हुआ तो सेकेंड नंबर लूप इज फ्री। इन दैट केस देयर इज ए चांस दैट 3 एंड 2 कैन फॉर्म ए लूप, उस केस में इट इज एंटी टर्मिनेशन। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि 3 के लिए कौन सा अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल और दिस वन इज अवेलेबल? हमें वो रेगुलेशन देखना है कि हाउ when 3 is going to pair with 2 and when 3 is going to pair with 4। अब यहां तक ठीक है? एनी कंफ्यूजन? Clear है सर। ठीक है, इस लीडर डोमेन की जो बात हम कर रहे हैं, जो 14 न्यूक्लियोटाइड लंबा 14 एमिनो एसिड लंबा हम बात कर रहे हैं, सॉरी सो इन दिस रेगुलेटरी डोमेन नंबर 1 जो हम लीडर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज लीडर डोमेन नंबर 1। इसमें हमारे पास 2 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां ट्रिप्टोफान होते हैं, कि जब आप मैसेंजर आरएनए बनाते हैं लीडर सीक्वेंस का, तो इस लीडर सीक्वेंस में हमें 2 ट्रिप्टोफान चाहिए होता है। मैं ये कहने का मतलब है कि ये मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए पे हमारे पास जेनेटिक कोड्स होते हैं, और जेनेटिक कोड्स पे जब प्रोटीन आप बनाने लगेंगे, लीडर पेप्टाइड बनाने लगेंगे, तो यहाँ 2 जगह पे हमें कंटिन्यूअस वी रिक्वायर ए टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान, टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान, बिकॉज यहाँ भी ट्रिप्टोफान चाहिए, यहाँ भी ट्रिप्टोफान चाहिए। उस 14 बेस पे एमिनो एसिड में मैंने बोला था कि ये लीडर पेप्टाइड 14 एमिनो एसिड लंबा होता है, इस 14 में 2 लगातार ट्रिप्टोफान चाहिए होता है हमें। ठीक है, यहाँ तक? दिस इज ट्रिप्टोफान एंड दिस इज ट्रिप्टोफान का, यहाँ भी ट्रिप्टोफान का जेनेटिक कोड्स है, यहाँ भी ट्रिप्टोफान का जेनेटिक कोड्स है, वो आप देख रहे हैं यहाँ एडजेसेंट ट्रिप्टोफान जेनेटिक कोड्स। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये हमें चाहिए होगा, इस जगह पे 2 चाहिए, एक इसके लिए एक इसके लिए। We require 2 tRNA loaded with tryptophan, one at this place, another at this place। ठीक है, अब आप एक कंडीशन सोचिए कि सेल के पास ट्रिप्टोफान की कमी है। जब सेल के पास ट्रिप्टोफान नहीं होगा तो उस केस में डज सेल विल हैव दिस टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान, सेल के पास ट्रिप्टोफान है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ट्रिप्टोफान लोड टीआरएनए पे लोड भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? Cell does not have tryptophan. When cell does not have tryptophan, that time this tRNA will not be there.
लोडेड टीआरएनए विल नॉट बी देयर विद द ट्रिप्टोफान, और सेल को 2 ट्रिप्टोफान की जरूरत है यहाँ। तो जब टीआरएनए होगा नहीं तो ये राइबोसोम्स यहाँ से मूव नहीं करेगा, दिस विल बी हॉल्टेड देयर। मेरे कहने का मतलब कि एक एक स्टेप सोचते हैं। हमने ये मैसेंजर आरएनए बनाने लगे, तो दिस इज ए सीक्वेंस नंबर 1, डोमेन नंबर 1। इस डोमेन नंबर 1 विच इज ए लीडर पेप्टाइड जहाँ पे 2 ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है इस फॉर्मेट टीआरएनए के केस में, इस रूप में, और सेल के पास ट्रिप्टोफान है नहीं, सेल इज लो ट्रिप्टोफान कंडीशन, तो दिस टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान विल नॉट बी देयर। और जब ये नहीं होगा तो राइबोसोम्स यहाँ से मूव नहीं करेगा, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं इस लेवल पे, इस कंडीशन पे, इस जगह पे। तो राइबोसोम हैज टू वेट तब तक जब तक टीआरएनए लोडेड ट्रिप्टोफान के साथ आएगा नहीं, तब तक राइबोसोम्स यहाँ से मूव नहीं करेगा। ठीक है ये? Yes, sir. When ribosome is going to halt here, it is going to wait there for tRNA loaded with tryptophan. That time is sufficient to form a loop between number 2 and number 3. Because number 1 is already involved. अब इसमें देखिए, एक को हमने यहाँ पे राइबोसोम एसोसिएटेड है और वेट कर रहा है फॉर tRNA लोडेड विथ ट्रिप्टोफान, तो नंबर 2 डोमेन इज फ्री। जब ये फ्री हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए लूप विथ 3, एंड व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन व्हेन लूप 2 and 3 इज गोइंग टू फॉर्म ए पेयर, उसको हम बोलते हैं एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन मीन्स टर्मिनेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर? Yes, sir. So that is written here, when tryptophan is in scarce conditions, the ribosome stalls at this domain and allowing a 2-3 anti-terminate hairpin loop formation, जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि 2 नंबर फॉर्म करेगा लूप 3 नंबर के साथ, एंड दिस लूप इज कॉल्ड एज एंटी टर्मिनेटर लूप। The ribosome stalls when it encounters the 2 tryptophan code due to a shortage of tryptophan carrying tRNA molecules, because सेल के पास ट्रिप्टोफान नहीं है तो ये लोड नहीं होगा टीआरएनए पे, सो राइबोसोम हैज टू वेट हियर एंड दैट टाइम इज सफिशिएंट फॉर दिस लूप फॉर्मेशन। सो दिस इज व्हेन लो ट्रिप्टोफान इज देयर, दैट टाइम वी आर गोइंग टू फॉर्म ए एंटी टर्मिनेशन लूप। एंटी टर्मिनेशन मीन्स termination will not occurs. In that case, protein synthesis will takes place. So all the gene expression A, B, C, D, E will occur. This is how attenuation works in the low tryptophan condition. Any question? First condition, low tryptophan level, how this works, anti-termination loop formation takes place, and how it is going to work. Is any question? Anyone is having any question? मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। सर यस सर अगर ए यूज हो गया तो फिर 3 के पास 2 ऑप्शन है 2 और 4, तो वो 2 के साथ ही बाइंड करेगा ये। प्रेफरेंस यस सर, ओके 3 is having more preference for 2 than the 4. ओके सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस वन? अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझे तो यू कैन आस्क मी। No one is having any question? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिस रीजन, जो हम यहाँ से यहाँ तक की रीजन की बात कर रहे हैं, ये रीजन 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड एज ए लीडर सीक्वेंस, लीडर genes L trip L. This is going to give me 4 different specific domains. Domain number 1 to domain number 4. This is domain number 1, 2, 3 and 4.
In this case, domain number 1 can pair with 2, 2 can pair with 3 and 3 can pair with 4. ये 1 और 2 मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 3 का पेयरिंग इंपॉर्टेंट हमारे लिए. If 3 is going to pair with 4, this is called as termination loop. So उस केस में भी हमारे पास हेयर पिन लूप बनेगा 3 और 4 का, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन लूप. अगर ये 3 4 के साथ ना बाइंड होकर 2 के साथ बाइंड करता है तो दैट इज कॉल्ड एज एंटी टर्मिनेशन लूप. सो 3 दो तरह से बिहेव करता है इन दी एंटी टर्मिनेशन लूप फॉर्मेशन में भी और टर्मिनेशन लूप बनाने में भी. 4 के साथ टर्मिनेशन लूप, 2 के साथ एंटी टर्मिनेशन लूप. अब ये जो सीक्वेंस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये रफली 14 अमीनो एसिड का लंबा होता है. इसमें 2 ट्रिप्टोफान चाहिए होता है. जब आप प्रोटीन बनाने लगेंगे, लीडर ये 14 अमीनो एसिड का लंबा पेप्टाइड बनाने लगते हैं, ये लीडर पेप्टाइड, तो 2 आपको टीआरएनए चाहिए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान फॉर दिस प्रोटीन सिंथेसिस, लीडर पेप्टाइड बनाने के लिए. अब कंडीशन है सेल के पास ट्रिप्टोफान ही नहीं है, सेल इज डिफिशियंट ऑफ ट्रिप्टोफान. सो ऑब्वियसली सेल में ट्रिप्टोफान नहीं है तो टीआरएनए पे लोड क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बिकॉज ट्रिप्टोफान इज नॉट देयर. सो इन दैट केस दिस टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान इज नॉट देयर. सो प्रोटीन का सही से बनते नहीं है तो आर राइबोसोम हैज टू वेट देयर, हैज टू पॉज देयर. वो वेट करते हैं सो दैट ए कंडीशन विल कम व्हेन सेल विल बी हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान. दैट टाइम, जब तक ये यहाँ वेट करता है, दैट टाइम इज सफिशियंट. वो इतना टाइम होता है कि ये 3 लूप बना ले 2 के साथ. अब संजीत ने जो पूछा कि ये 3, जब ये 2 भी फ्री है, 3 भी फ्री है, 4 भी फ्री है, तो वाई 3 इज गोइंग टू पेयर विथ 2, वाई नॉट 4? ये भी तो बन सकता है जब तीनों फ्री हैं. तो प्रेफरेंस हम देते हैं जब 3 की पेयरिंग, मोर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू 2. दिस इज मोर ईजी वे 3 कैन पेयर विथ 2 compared to 4, because of strength, because of number of bond formation and because of number of other regions. दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा तो 3 पेयर करेगा 2 के साथ. सो इस केस में जो हम अभी बात कर रहे हैं लो ट्रिप्टोफान के केस में, 3 इज गोइंग टू फॉर्म ए पेयर विथ 2 एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी टर्मिनेशन लूप. सो इन दैट केस टर्मिनेशन विल नॉट टेक्स प्लेस एंड ऑल द 5 ट्रिप्टोफान सिंथेटिक जीन्स विल बी एक्सप्रेस्ड एंड वी विल गेट द ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज्ड. This is in case of low tryptophan concentration. So उसी का explanation ये लिखा हुआ है. During the period of tryptophan scarcity, a ribosome translating the code sequence of leader peptide may stop when it encounters the true tryptophan codes because of the shortage of tryptophan carrying tRNA molecules. Because a stalled ribosome at this site blocks region 1. सो 1 और 2 कभी हेयर पिन बनाएगा नहीं, बिकॉज ए पे तो राइबोसोम बैठा हुआ है. सो अल्टरनेटिवली इट इज गोइंग टू फॉर्म ए 3-2 लूप फॉर्मेशन, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन. एंड दिस 2 and 3 हेयर पिन लूप प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज इसकी प्रेफरेंस यहाँ ज़्यादा है 3 की कंपेयर टू दिस वन. सो टर्मिनेशन लूप बनेगा नहीं. दिस इज कॉल्ड एज एंटी टर्मिनेशन लूप and ultimately tryptophan will be synthesized by expressing those enzymes. So this is same thing, उसी को अलग अलग तरीके से दिखाया गया. दिस इज दी ट्रिप्टोफान कोड्स, ये एंड ये. यहाँ अब हमारे यहाँ टीआरएनए आ ही नहीं रहा है तो राइबोसोम हैज टू वेट हियर सो दैट टीआरएनए लोडेड विथ ट्रिप्टोफान विल कम एंड देन इट विल गो. So that time is sufficient for formation of loop between 2 and 3 and this is the 4th region. ठीक है, ये दिस इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Now, second condition is when we are going to have high amount of tryptophan available. In that case, when tryptophan is abundant, ribosome bind to the tryptophan at this level. यहाँ पे tRNA bind करेगा and ribosome does not have to wait here. इसी लीडर सीक्वेंस में जो बिकॉज इसी जो लीडर पेप्टाइड जो 14 अमीनो एसिड का बनेगा तो यहाँ पे लास्ट में एक हमारा होता है स्टॉप कोडॉन. ठीक है, व्हेन राइबोसोम कम्स हियर, जब ये राइबोसोम यहाँ एक इसको क्रॉस करके लास्ट स्टॉप कोडॉन पे आता है एंड सो दैट इट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड, तो राइबोसोम का कुछ पोर्शन जो है ना दैट इज गोइंग टू ब्लॉक दिस
2 region. So some portion of the ribosome is going to block the region number 2 या domain number 2. So अब दो का ना तो ये रीजन कहीं यूज हो सकता है ना ये रीजन कहीं यूज हो सकता है. So in this case when tryptophan is sufficient, tryptophan has been added these two places, that time ribosome comes and halts for some time at the stop codon at the end of the leader peptide and covers some portion of leader sequence 1 and sequence 2 या domain 1 and domain 2. So जब ये दोनों domain block है, so that time is sufficient for the formation of this loop. So 3 and 4 is going to form a loop, and जब 3 4 loop form करेगा तो this is called as stop codon, sorry termination loop. So this is going to terminate the sequences. This is the basic process. So शुरू से मैं बताता हूँ. When tryptophan is abundant, tryptophan is sufficient quantity, high amount of tryptophan is available into the cells, ribosome binds to the tryptophan messenger RNA that is being transcribed in the protein leader sequence जो आप यहाँ देख रहे हैं. It is going to give you protein synthesis. Now the 2 tryptophan codons for the leader peptide lies within the sequence 1, यहाँ पे बना दिया, and the translational sequence comes to this stop codon at the end of the leader sequence. वो जो होता है रीजन नंबर 1 और 2 के बीच में. Because of this, जो some portion of sequence 1 and sequence 2 is covered with ribosome, and this makes sufficient for the formation of region number 3 and 4. So when sequence number 3 base pair with sequence 4, a 3-4 stem loop is going to form, and that is called as transcription terminator. Therefore when tryptophan is going to be present, उस केस में terminate हो जाएगा, protein synthesis will not takes place. मतलब पांचों का पांचों एंजाइम नहीं बनेगा and process will be stopped. ठीक है. इसके बाद जैसे ही आपने ट्रिप्टोफान मिल गया, सेल ने कुछ ट्रिप्टोफान बना लिया, बिकॉज यहाँ पे आपने टर्मिनेट कर दिया जब सबके पास सफिशिएंट ट्रिप्टोफान है. जब सेल ने ट्रिप्टोफान को यूज कर लिया, सो अगेन जब ये बनाने लगेगा फिर सेल है को स्टॉप होना होगा यहाँ पे, एंड अगेन इट विल बी डूइंग सेम वे. सो जब ट्रिप्टोफान होता है तो इट विल बी टर्मिनेटेड. व्हेन ट्रिप्टोफान इज नॉट देयर, राइबोसोम विल वेट हियर, एंड इन दैट केस एंटी टर्मिनेशन लूप विल फॉर्म. सो आपको ये समझना है कि ट्रिप्टोफान होगा तो कहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर राइबोसोम हैज टू वेट. राइबोसोम वेट इस जगह पे कर रहा है या फिर स्टॉप कोडॉन पे हॉल्ट हो रहा है. इफ राइबोसोम इज गोइंग टू हॉल्ट एट दिस प्लेस फॉर tRNA लोडेड विथ ट्रिप्टोफान, इन दैट केस 2 is going to pair with 3. So anti-termination loop formation. If ribosome is going to halt at this stop codon, so 3 and 4 loop formation will take place, and then termination will take place. Clear? So this is called as attenuation of tryptophan operon. Attenuation means where transcription and translation both process are going to involved in the same process for the regulation. So दो तरह की रेगुलेशन हमने देखी इस केस में. दिस इज सेम थिंग बिकॉज ट्रिप्टोफान हैज बीन एडेड हियर एंड इट विल गो एंड अल्टीमेटली इट विल स्टॉप एट दिस स्टॉप कोडॉन. सो जब स्टॉप कोडॉन पे होगा तो कुछ पोर्शन ऑफ सीक्वेंस 2 का भी यूज हो जाएगा. मीन्स राइबोसोम इज गोइंग टू कवर सम पोर्शन ऑफ सीक्वेंस 2, some portion of sequence 1. So one number of sequence and 2 numbers of sequence cannot form loop with any one. So in that case loop number 3 and 4 is going to form a loop, and this is called as transcription termination या terminator sequence. So when tryptophan is rarely available or sufficient amount of available, a ribosome can complete translation of the leader peptide without stalling because tryptophan high. As it pauses at the stop codon and blocks some of the region 2, prevent it from the base pairing with region number 3. As a result, region number 3 and 4 can form a structural loops, and it is going to form a termination of transcription.
इसी चीज़ को जो एटेन्यूएशन मैंने बोला था, जहां हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को यूज करते हैं, उसी को हम एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबो स्विच. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ राइबो स्विच, दैट इज ए मैकेनिज्म इन विच कैन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एन mRNA. एक ही mRNA हमारे पास है जहां ट्रांसक्रिप्शन भी यूज हो रहा है, ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, और दोनों मिल के रेगुलेट कर रहा है प्रोसेस को. So that is called as ribose switching. So overall, this is when you are having high amount of tryptophan, when you are having low amount of tryptophan. जब आपके पास high amount of tryptophan है, then ribosome will stop at a stop codon. When you have low level of tryptophan, that time ribosome will stop at the trypoperon. Is it clear? Yes, sir. Anyone is having any question? So when tryptophan we are having in abundant, the inactive repressor, दो तरह की रेगुलेशन. फर्स्ट, inactive repressor is activated. जब आपके पास sufficient amount of tryptophan है तो tryptophan will bind with inactive repressor. So आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि inactive repressor is activated by a tryptophan co-repressor and it binds to the operator site and tryptophan operon will be switched off. Second, जो हमने अभी देखा था, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए tryptophan terminator hairpin loop formation. जब हमारे पास tryptophan नहीं होता है तो नो को रिप्रेसर इज एबल टू बाइंड विथ रिप्रेसर. सो रिप्रेसर हम एक्टिव नहीं कर पाएंगे. व्हेन रिप्रेसर डज नॉट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, इट विल नॉट बाइंड एंड स्विच ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑन. दूसरा था कि जब आपके पास ट्रिप्टोफान हाई नहीं तो राइबोसोम विल वेट एट द ट्रिप्टोफान रीजन्स ऑफ द लेडर पेप्टाइड. उस 14 न्यूक्लियो एमिनो एसिड में से 2 एमिनो एसिड हमें ट्रिप्टोफान चाहिए था, वहाँ पे राइबोसोम हैज टू वेट एंड दैट makes that is going to do the binding of 2 and 3. So that will form a anti or non terminator hairpin loop. ठीक है, this was you can call it tryptophan operon. Any question anyone didn't understand in this one? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. या आप बेसिक से शुरू करके अभी तक जो भी चाहे पूछ सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट मिनट्स जीन रेगुलेशन, जो हमने बेसिक्स बात करी थी, टर्म्स की बात की थी, देन लैक ओपेरॉन एंड देन ट्रिप ओपेरॉन. कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है सर. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Then I am having one question for you. Just 1 second.